A very good morning class 6 student. Today we will continue exercise 1.3 of chapter 1, that is knowing our number. We have already done question number 1 and question number 2. Today we will do question number 3. Let's start. Question number 3 is estimate the following products using general rule. अब आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है यू विल यूज़ हियर जनरल रूल, क्योंकि यहाँ पे आपको गिवन नहीं है कि आपको नियरेस्ट 100 फाइंड आउट करना है या नियरेस्ट 1000. सो एज यू कैन सी इन फर्स्ट पार्ट 578 मल्टीप्लाई बाय 161 बोथ आर 3 डिजिट नंबर. तो दोनों के लिए यू विल फाइंड आउट द नियरेस्ट 100 और दोनों के नियरेस्ट 100 निकाल के यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट. In second part 5281 multiply by 3491 both are 4 digit number. So दोनों के लिए you have to take out the nearest 1000. दोनों का आप nearest 1000 निकालेंगे, then you can multiply it and you will get the product and that will be the answer. Today I will solve for you C and D part only, and A and B part will be your homework. In C part we have 1291 multiplied by 592. So here what we do, we will rounding off by general rule. So 1291 and 592 will be rounded off to, यहाँ पे हम निकालेंगे इनके nearest 100. So 1291 will become 1300 and 592 will become 600. As you know that 1291 आपको लास्ट सेशन में भी आई हैव टोल्ड यू दैट 2 का जो नेक्स्ट डिजिट है दैट इज़ 9 विच इज़ ग्रेटर देन 5, तो 2 विल बी इंक्रीज बाय 1, सो इट विल बिकम 1300. एंड 592 में भी 5 का जो नेक्स्ट डिजिट है दैट इज़ 9 विच इज़ ग्रेटर देन 5, सो 5 विल बिकम 6, तो इट विल बिकम 600. सो द प्रोडक्ट विल बी 1300 मल्टीप्लाई बाय 600. एज यू नो 13 6 78 and 20 will become 40, so we get the product and that is equal to 7,80,000. Okay, so how easy to find the product. Now we will do part D. Now in D part we have given 9250 multiplied by 29. So here again we will rounding off the number by general rule, and for this what can we do? For make it very simpler multiply, what we do, हम फर्स्ट वाले का नियरेस्ट 1000 फाइंड आउट करेंगे एंड सेकेंड वाले का हम नियरेस्ट 10 फाइंड आउट करेंगे. सो 9250 विल बी राउंडेड ऑफ टू आपका नियरेस्ट 1000 and 29 will be rounded off to nearest 100. So it will become 9000 and 29 will become 30. As you know that 9250, 9 की जो नेक्स्ट डिजिट है दैट इज़ 2 विच इज़ लेस देन 5, तो 9 में कोई चेंज नहीं आएगा, इट विल बिकम 9, सो राउंड ऑफ ओके हो जाएगा 9000. एंड 29 में 2 की जो नेक्स्ट डिजिट है दैट इज़ 9 ग्रेटर देन 5, सो 2 विल बिकम 3, सो वी गेट हियर राउंडेड ऑफ 9000 and 30. So 9000 multiplied by 30, 9 3s are 27 and 30 and 10, again it will become 40. So we get the answer 2,70,000. So here we have completed our exercise 1.3. Question number 3 part A, part B will you do as your homework. Now we will start today a new topic, and that is Roman numerals. Today's topic is Roman numerals. Okay, you have already done the Roman numbers and already you know how to write the Roman number from 1 to 100. Today I will tell you how to write the larger number, and we learn about Roman numbers 1 to 1000. The very first you should know that from where Roman numbers come. The Roman numbers came from the ancient Rome. Okay, and we use here alphabets, special alphabets, and these are only 7 letters from the alphabet. Okay, Roman numeral system is based on 7 letters of the alphabet. Okay, here you can see Roman numbers क्या हम जो use करते हैं that are I, V, X, L, C, D, M, and इनकी अपनी corresponding values है. और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो देयर इज़ नो सिंबल फॉर ज़ीरो. इन रोमन नंबर ज़ीरो के लिए कोई सिंबल नहीं है. सो वी यूज़ ओनली दीज 7 लेटर्स टू फॉर्म रोमन नंबर्स. सो आई इज़ फॉर 1, V इज़ फॉर 5, X इज़ फॉर 10, L इज़ फॉर 50, C इज़ फॉर 100, D इज़ फॉर 500 and M इज़ फॉर 1000. ओके, अब इन्हीं 7 लेटर से
we will learn how to make Roman number from 1 to 1000. First, we will learn some rules for writing Roman numerals. Okay, so here we have some rule. As you know, we have symbol 1, 2, 3. वैल्यूज़ आपको पता है इनकी 1, 2, 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड अभी अपनी क्लास में रिप्रेजेंट करते थे आप. 10 इज़ फॉर x, तो अगर आप डबल करेंगे इट विल बी 20 एंड ट्रिपल करेंगे तो इट विल बी 30. ओके, तो द फर्स्ट रूल सेड कि व्हेन वी ऐड, जब आप ऐड करते हैं तो सिम्बल्स को, तो उनकी वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, आपस में प्लस हो जाती हैं. फॉर एग्जांपल जैसे आपको बताया था, आपने 1i लिखा तो 1 बना, 2i लिखा तो 1 + 1 2 बन गया, 3i तो 1 + 1 + 3. सो सिमिलरली आपने किया x तो इट विल बिकम 10x, डबल x इट मीन्स 10 + 10 20 एंड ट्रिपल x 10 + 10 + 10 30. ओके, नाउ एज यू कैन सी वी हैव I, X, C, M. ओके, ये आपके पास नंबर है. I डिनोट 1 एंड X डिनोट 10, C डिनोट 100, M डिनोट 1000. ओके, सो सिर्फ आपके I, X एंड C, M ही रिपीट हो सकते हैं. दीज आर द ओनली अल्फ़ाबेट दैट यू कैन रिपीट एंड दैट यू कैन रिपीट ओनली 3 टाइम्स. 3 टाइम्स से ज़्यादा यू कांट रिपीट. ओके, इट इज़ रिपीटेड अप टू 3 टाइम्स. एंड बाकी जो आपके पास बचे इसके अलावा V, L एंड D दैट कैन नॉट बी रिपीटेड. इनको आप कभी रिपीट नहीं कर सकते. VLD यू कांट रिपीट. दैट इज रूल नंबर 2. नाउ स्मॉलर वैल्यू अगर आपकी राइट साइड में है एंड ग्रेटर वैल्यू आपकी लेफ्ट साइड में है तो आप इनको प्लस करते हैं वैल्यूज़ को. एज यू कैन सी ये 6 है, V इज़ फॉर 5, I इज़ फॉर 1, 5 + 1 क्या हो गया, 6 हो गया. और अगर स्मॉलर वैल्यू लेफ्ट में है और ग्रेटर वैल्यू आपकी राइट में है तो आप क्या करते हैं, माइनस करते हैं. 5 - 1 4, क्योंकि I पहले था एंड V आपका बाद में था तो वैल्यू बनी 4. दैट इज़ रूल नंबर 4. नाउ द रूल नंबर 5 सेड कि ग्रेटर वैल्यू सिंबल जो होते हैं आपके VLD ये कभी भी आगे नहीं आ सकते. ठीक, keep this thing in mind. Now I will show you some example. As you know, 1 is for I, 2 double I, 1 + 1 हो गया, 3 1 2 3i. ओके, नाउ 4 के लिए यू कांट राइट 1 2 3 4i. आप 4i नहीं लिख सकते क्योंकि आपका रूल क्या कहता है, यू कांट रिपीट अप, यू कैन ओनली रिपीट अप टू 3 टाइम्स. 4 टाइम्स आप रिपीट नहीं कर सकते. सो व्हाट वी डू, 5 के लिए एज यू नो वी हैव V, तो हम उससे 1 माइनस कर देते हैं. तो 4 क्या बन जाएगा, I V, क्योंकि अगर आप पहले लिखते हैं तो आप माइनस करते हैं. अब आपको 6 के लिए जब बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे. उसके लिए आप राइट साइड में लिखेंगे V के. तो 6 क्या बन जाएगा, VI. 7 विल बिकम VII. उसमें 2 और प्लस कर देंगे, 5 + 2 = 7. तो 7 के लिए आप क्या करेंगे, VII. तो 7 विल बिकम VII. देन 8 VII 3 टाइम्स. देन अगेन 9 के लिए सेम रूल फॉलो करेंगे. 10 से 1 माइनस, इट मीन्स I एंड क्रॉस यानी कि X. देन 10 इज X. ओके, इज इट क्लियर. 1 to 10, वंस यू हैव डन 1 to 10, सो उसके बाद आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि जैसे आप काउंटिंग करते हैं 11 के आगे सेम कर देते हैं वैसे ही आपको करना है. 10 विल बिकम 1x, 20 विल बिकम 2x एंड 30 विल बिकम 3x. नाउ एज यू नो वी हैव 50, आपके पास क्या है, L. सो 40 के लिए आप 50 से क्या कर देंगे, 10 माइनस, तो आप L से पहले क्या लगा देंगे, X लगा देंगे. और 60 एंड 70 के लिए X को बाद में लगाएंगे क्योंकि आप प्लस करेंगे. 60 50 + 10, 70 50 + 10 + 10 और एस सो ऑन आपको 80 मिल जाएगा. LX X X. ओके, 90 आप 100 में से 10 को माइनस कर देंगे. सो यू विल गेट CXC. 100 - 10 एंड 100 आपको पता है C होता है. सो इट विल ईजी. अगर आपको मैं अभी पूछूं कि 55 कितना होगा तो 50 आप करेंगे L और उसके आगे 5 का सिंबल लगा देंगे V, तो आपका 55 बन जाएगा. इफ़ आई आस्क यू 43 बताओ तो XL 1 2 3. सो इफ़ यू नो दिस सिंबल तो यू कैन ईजीली लर्न. नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस थिंग with more examples. Now we have more examples here. 13, 14, 27, 19, 54, 84, 94. So 13 के लिए X और उसके साथ आप 10 के साथ 3 प्लस यानी I. Similarly X and 4 for 14. 27 के लिए we have 2X plus 7. You know how to write 7? V11 यानी I. 19 के लिए we have 10 plus 19 यानी 10 plus
9 का साइन यू कैन लिख सकते हैं जो कि होता है 10 - 1 दैट इज एक्स आई एक्स। 54 5 के लिए आपको पता है 50 के लिए एल यू विल राइट एंड 4 के लिए व्हाट यू विल राइट आई वी एल आई वी 54। 84 के लिए वी हैव 80 50 + 10 + 10 + 10 इट मीन्स एल एक्स 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 एंड देन 4 okay 5 - 1 so IV for 94 what we will do for 94 we have XC 90 के लिए आपको बताया था ना what you will do 100 - 10 तो C से पहले आपको X लिखना पड़ेगा XC and 4 के लिए 5 - 1 that is IV okay hope you have understood now similarly we do for the larger numbers इनसे बड़े numbers के लिए सो जैसे आपका x 10 था देन x 20 बना सिमिलरली वी हैव 100 C है तो 200 विल बी CC 300 विल बी CCC। अब आपको पता है यू कांट रिपीट मोर देन 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते तो आपको पता है 500 D है तो 500 में से 100 माइनस करेंगे तो 400 होगा तो 400 विल बिकम CD ओके 500 क्योंकि D है आपका तो आप उसमें से 100 माइनस कर देंगे C को माइनस करेंगे तो C को पहले लिखेंगे तो 400 विल बिकम CD 600 अब आपको 500 में 100 प्लस करना है तो D के बाद आपको C लिखना होगा तो 600 विल बी DC 700 विल बी DCC 800 विल बी DCCC नाउ 3 टाइम्स रिपीट कर चुके हैं 900 के लिए व्हाट यू वी डू हम 900 के लिए 1000 में से 100 माइनस कर देंगे सो वी विल राइट हियर CM क्योंकि आपको पता है 1000 इज़ फॉर M और M से आपको 100 माइनस करना है तो आप C को पहले लिखेंगे सो CM 900 हो गया एंड 1000 आपका हो गया M सो 100 इज C 200 इज डबल C 300 इज ट्रिपल C 400 CD 500 D 600 DC 700 DCC 800 DCCC 900 CM and 1000 is M now I will show you some example to make it more clear now here I have some example first is 101 अब आपको 101 लिखना है 100 के लिए you will write C and 1 के लिए you will write I तो 101 कैसे लिखेंगे CI 109 100 के लिए C 9 के लिए I and X so CIX 220 200 के लिए you will write CC and 20 के लिए आपको पता है डबल X तो CCXX 390 for 390 what you will do 300 के लिए CCC एंड 90 के लिए हमारा क्या था XC इट मीन्स 100 - 10 तो C से पहले X को लिखेंगे XC 450 के लिए पहले 400 का सिंबल लिखेंगे दैट इज CD एंड 50 का सिंबल क्या होता है L तो 450 क्या हो जाएगा CDL 536 सबसे पहले आप 500 के लिए D 36 के लिए आपको पता है 3 टाइम्स क्या लिखना पड़ेगा आपको X 30 और 6 के लिए VI 600 के लिए वी हैव DC एंड 50 के लिए वी हैव L और 2 के लिए वी हैव 2I तो DCLII 718 नाउ 718 कैसे लिखेंगे पहले 700 DCC देन 18 के लिए 10 इट मीन्स X देन 8 VII now 888 for 800 you will write DCCC now for 80 के लिए we have L X X 3 times क्योंकि 50 + 10 + 10 + 10 so L X X X then 8 आपको ऑलरेडी पता है कैसे लिखते हैं V and then 3 आपके I V3I 999 के लिए 900 डिनोट बाय CM और 90 is denoted by XC and 9 will be IX so we have here CMXCIX okay hope you have understood this okay class you will write 1 to 100 Roman numbers from 1 to 100 Roman numerals in your notebook that is also your homework and I have given you some number to change in Roman numeral that will be also done by you in your notebook okay that is all for today thank you